Dear students, good morning. Today we will discuss an important relation of relativistic mechanics, that is increase of mass in an inelastic collision. Inelastic collision during inelastic collision ਜਿਹੜਾ mass है वो colliding bodies ਦਾ increase करता है. पहली गल, what are inelastic collisions? Those collisions in which momentum is conserved but kinetic energy is not conserved are called inelastic collision. So इत्थों आइडिया हो गया kinetic energy conserve नहीं करती, it means जे conserve नहीं करती तो somehow किसी चीज़ दे विच वो convert होंदी है. Also in last lectures we discuss mass energy equivalence, Einstein's famous relation, that is mass is converted into energy and vice versa. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਬੱਚੇ ਕਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਲਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲਿਜਨ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਮਾਸ ਆਫਟਰ ਕੋਲਿਜਨ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੇਅਰ ਰੈਸਟ ਮਾਸਸ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲਿਜਨ. ਕਲਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਅਤੇ ਕਲਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ. ਆਫਟਰ ਕੋਲਿਜਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਫੋਰ ਕੋਲਿਜਨ ਤੋਂ. ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, we consider two inertial frame S and S dash such that frame S dash is moving with constant velocity v along x direction with respect to frame S. Suppose two colliding bodies A and B, each of rest mass, दोनों का rest mass same लेके चलिया, मैं identical bodies लेती हैं, are moving in frame S dash with velocities v and b dash respectively. velocity body B इधर ਨੂੰ move कर रही है जबकि एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ S dash frame with respect to S पॉजिटिव x एक्सिस ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ है, इधर जा रही है, इस करके नेगेटिव साइन लाया है. तो बॉडी ये है जी वो सेम डायरैक्शन दे विच मूव कर रही है जिधर नूं जिस डायरैक्शन दे विच फ्रेम एस डैश मूव करता. सो वेलोसिटी पॉजिटिव लेती है. सो हुण वन बाय वन पहला आपां कोलिजन स्टडी करांगे इन फ्रेम एस डैश, फिर आपां कोलिजन करांगे इन फ्रेम एस, फिर लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम है जिहड़ा ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਮਾਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਲਿਜਨ ਐਜ਼ ਅਬਜ਼ਰਵਡ ਇਨ ਫਰੇਮ ਐਸ ਡੈਸ਼. ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਇਨਲਾਸਟਿਕ ਕੋਲਿਜਨ ਨੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਨਲਾਸਟਿਕਲੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ. ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮੇਨ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ. ਨਾਓ ਮਾਸ ਆਫ ਬੋਡੀ ਏ ਇਨ ਫਰੇਮ ਐਸ ਡੈਸ਼, क्योंकि बॉडीज़ मूव कर रही हैं इस करके जो मास मूविंग मास है रेस्ट मास तो डिफरेंस होंदा है डिफरेंट होंदा है. सो इट इज़ इक्वल टू एम नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस बी स्केयर ओवर सी स्केयर. उन्होंने मान लें आप एम डैश, लेट अस से इट इज़ एम डैश. बॉडी दूसरी भी आइडेंटिकल है. सो मास ऑफ बॉडी बी इन फ्रेम एस डैश इज़ आल्सो इक्वल टू एम ओवर 1 माइनस ए माइनस बी स्केयर नाल है, क्योंकि माइनस बी का स्केयर करोगे फिर एग्जैक्टली सेम चीज़ आ जानी. ये भी अपन एम डैश. इस करके दोनों आइडेंटिकल बॉडीज़ का मास आप एम डैश लैके चल पे. हुण सपोज कर लो लेट द कंबाइंड मास एम डैश ऑफ द टू बॉडीज़ इन फ्रेम एस डैश मूव्स विद वेलोसिटी बी डैश. जो कोलाइड कर गई आफ्टर कोलिजन we can write it as after collision. After collision, after collision let the already write here, so twice दो बार लिखा गया. so after collision इस velocity नाल move कर रहे हैं. so by law of conservation of momentum, conservation of momentum की कहता है initial momentum of the two bodies before collision M1B और दूसरी माइनस बी ना वेलोसिटी मूव कर रही है, इस करके आप माइनस ले लेंगे. माइनस एम डैश बी इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन. सो जो वैल्यू सबस्टिट्यूट करते हैं अपने को की आ जाता है
So m dash b dash is equal to w dash is equal to 0. So w dash is equal to 0. Combined mass की velocity है वो आफ्टर कलिजन इन फ्रेम एस डैश ध्यान रखियो 0 है, इसका मतलब मास एम डैश है जोड़ा वो रैस्ट के उत्ते है, कंबाइंड रैस्ट मास मान के चलते हैं। नाउ हुण ऑब्जर्व करते हैं कलिजन इन फ्रेम एस। सपोज इन फ्रेम एस टू बॉडीज अपीयर टू मूव विद वेलोसिटी u1 एंड u2 बिफोर कलिजन। कलाइड करने तो पहला इन्नी वेलोसिटी नाल हुण आपां यूज करांगे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशनस। एक्चुअली हुण एस डैश फ्रेम च गिवन है, एस फ्रेम च फाइंड करना आपां यूज करांगे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशंस। ux इज इक्वल टू ux डैश प्लस b ओवर 1 प्लस ux डैश b ओवर c स्क्वायर। हुण फस्ट पार्टिकल है जिहड़ा वेलोसिटी v नाल मूव कर रहा है, ए पार्टिकल तो b पुट करांगे, ux डैश इज इक्वल टू b हो गया तो प्लस b ओवर 1 प्लस दिस, सो इट कम्स आउट टू बी दिस। सिमिलरली जो बी पार्टिकल की वेलोसिटी है u2 ये माइनस बी ना मूव कर रहा है, माइनस बी प्लस बी ओवर दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जोड़ा m2 पार्टिकल है, सॉरी सैकेंड पार्टिकल है बी पार्टिकल है, वो की है एट रेस्ट के उत्ते है, वो रेस्ट के उत्ते हैगा, आ वेलोसिटी u ना कर रहा है। नैक्सट हुण आपां m1 ते m2 मास भी फाइंड कर लैंदे क्योंकि मूविंग ने। सो m1 एंड m2 द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स a एंड b इन फ्रेम s। सो m1 कितना हो गया, m1 ओवर 1 प्लस कितनी वेलोसिटी मूव कर रहा है फ्रेम s के u1 स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। u1 की वैल्यू पुट कर देने आप, पुटिंग दिस वैल्यू एंड सॉल्विंग। जो पुट करोगे, पुट करन तो पहला ये आ वैल्यू पुट करती, उस तो बाद इन्हें जो सॉल्व करांगे आपां LCM लैके ये उपर चल जाना है। उपर चल तो बाद जो थोड़ा जिहा सॉल्व आपां करांगे नूं वी गेट दिस m0 ओवर 1 प्लस b स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इंटू 1 माइनस b स्क्वायर ओवर c स्क्वायर होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट है कैंसल आउट हो जाएंगे, अपने को आ चीज़ आ गई। अच्छा पार्टिकल जोड़ा b है वह मास m2 है, इट इज़ इक्वल टू m0 ओवर 1 प्लस हुण u2 कितना अपने को, बट u2 इज इक्वल टू 0, सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू 0 हेयर वी गेट दिस, क्योंकि u2 अपने को की है 0 है। सिमिलरली हुण सपोज कर लो दोनों पार्टिकल जो कोलाइड करके उस तो बाद उनकी कंबाइंड वेलोसिटी है टू मासिस की हैगी w, इट इज़ w नॉट w डैश, इट इज़ w, ठीक है जी। सो आपां w फाइंड करना है तो अपने को कंबाइंड मास की वेलोसिटी एस डैश फ्रेम च w डैश पता कितनी है 0। इट मीनस w इज इक्वल टू w डैश प्लस b ओवर 1 प्लस दिस, बट ये 0 है, सो 0 पुट करांगे अपने को b आजू। न सिर्फ आप कंबाइंड मास m मान लीए इन फ्रेम एस दे विच, इट मीनस दैट मास मूव्स विद वेलोसिटी b। सो वेलोसिटी b नाल हो कोलाइड करन तो बाद फ्रेम एस दे विच मूव करेगा। आलसो जिहड़ा कंबाइंड मास है इन फ्रेम एस इज रिलेटेड टू कंबाइंड मास इन फ्रेम एस डैश बाय दिस रिलेशन, ठीक है। यह हैगा कंबाइंड मास इन फ्रेम एस डैश, कंबाइंड मास इन फ्रेम एस डैश, ठीक है जी। यह हैगा कंबाइंड मास की है फ्रेम एस दे विच है, फ्रेम एस दे विच है कंबाइंड मास। सो कंबाइंड मास इन फ्रेम एस, सो बोथ आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन। आलसो हुण आपां अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम का जिहड़ा कंजरवेशन लॉ कहता है इनिशियल मोमेंटम इन सॉरी बिफोर कलिजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कलिजन। इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m इंटू v। हुण u1 तो m1 u2 तो m2 की ये जिहड़ियां वैल्यूज़ ने आपां नूं वो फाइंड करनियां लिखनियां पैणगियां, सो पुट करनियां पैणगियां। सो आलसो इत्थे जिहड़ियां मिस आउट हो गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2A सपोज कर लो। सो 2A ते 2B इस इत्थे भी लिखनियां पैणगियां, इक्वेशन 2 एंड 2A 3 4 5
ये सारिया इक्वेशन 2 and 2a किहड़ियां इक्वेशन है, u1 की वैल्यू है, u2 की वैल्यू है। सो 3 जी इक्वेशन है वो m1 की वैल्यू है, 4 इक्वेशन m2 की वैल्यू है, 5 इक्वेशन है जी कैपिटल M की है। ये सारिया वैल्यू इत्थे पुट करांगे। आफ्टर सबस्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ एंड सिंपलीफाइंग वी गेट सबस्टिट्यूट करके वैल्यू जो सिंपलीफाई करांगे वी गेट m डैश इज इक्वल टू 2m0 ओवर अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਸ है इन फ्रेम S डैश आफ्टर कलिजन जो बॉडीज़ कलाइड करदियाँ वो ਜਿਹੜਾ मास हैगा वो भी रेस्ट मास ही है। इट इज़ ग्रेटर दैन रेस्ट मास ऑफ द इंडिविजुअल टू पार्टिकल्स बाय दिस फैक्टर डिनोमीनेटर। दिस फैक्टर इज़ लैस दैन 1। इट मीनस ਜਿਹੜਾ जो लैस दैन 1 है इट मीनस m डैश इज़ ग्रेटर दैन 1। ये m डैश है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ग्रेटर है 2m0 ड्यूरिंग इन इलास्टिक कलिजन। इसका मतलब की है मास ऑफ सिस्टम इनक्रीजेस। दस मास ऑफ सिस्टम की है इनक्रीज कर रहा है। हुण ये कितना कर रहा है इनक्रीज इन मास। लेट अस इट इज डेल्टा m इट इज इक्वल टू रेस्ट मास आफ्टर कलिजन माइनस individual rest mass of two particle before collision. Substituting these values we get this, and according to Einstein's mass energy relation this equivalent energy है जी because increase in mass is equivalent to the एनर्जी जी रिलीज़ हो रही है या जो भी हो रही है किसी रिएक्शन की गल करते हैं या रिलीज़ हो रही है या ऑब्जर्व हो रही है दैट इज इक्वल टू डेल्टा m c स्क्वायर। सबस्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू वी गेट दिस। सो ये हैगी है। हुण आपां एक जिहड़ी सब तो पहला मैं तुहानूं स्टेटमेंट बोली सीगी भी जिहड़ा ये इनक्रीज इन मास है ये एक्चुअल दे विच की है ये जिहड़ी कनैटिक एनर्जी है बिफोर कलिजन है वो कन्वर्ट करती है मास दे विच। इहदा मतलब जिहड़ी कनैटिक एनर्जी बिफोर कलिजन है जो आ एनर्जी दे इक्विवेलेंट आ जाए तो यदा मतलब अपन आइडिया हो गया ये एनर्जी की है इनक्रीज इन मास करके। इट मीनस अपनी जी अजम्पशन है वो सही होगी। आप अजम्पशन नूं प्रूफ करते हैं किस तरीके नाउ दिस इक्विवेलेंट एनर्जी इन मास ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू टोटल किनेटिक एनर्जी बिफोर कलिजन। हुण आपां ये देख लैंदे वी कैन प्रूव इट एज बिलो। टोटल एनर्जी ऑफ टू बॉडी बिफोर कलिजन कितनी है T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है जी किनेटिक एनर्जी होंगी है वो होंगी है E माइनस m0 c स्क्वायर। E की है टोटल एनर्जी विच इज़ m c स्क्वायर होंगी है। सो यदा मतलब ये एनर्जी होगी m डैश c स्क्वायर माइनस 2m0 c स्क्वायर। ये पहले पार्टिकल की ये फ्रेम S डैश गल कर रहे हैं मैं ध्यान रखियो। ये किहड़ी है m पार्टिकल सैकेंड की क्योंकि मास दोनों का सेम है m डैश आप प्रूफ कर चुके हैं। सो ये भी उन्नी बन गई। यदा मतलब T इज इक्वल टू 2 टाइम्स m डैश c स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर। बट आप इनिशियल जो स्टार्टिंग दे विच चले सी उदों आप लेता सी भी दोनों m डैश ने जिहड़े दैट इज इक्वल टू m0 ओवर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर ने। यदा मतलब जो वैल्यू पुट करांगे m डैश इज इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू हेयर वी गेट दिस। हुण ये वाली इक्वेशन नूं आपां देख लैंदे आ ते आह वाली जिहड़ी इक्वेशन मैं तुहानूं लास्ट दस्सी सीगी आह वाली इक्वेशन आपां देख लीए। दोनों इक्वेशनस एग्जैक्टली की ने ध्यान नाल देखो। दोनों इक्वेशन ने जिहड़ियां हो सेम ने m0 c स्क्वायर ते आ भी सेम फैक्टर है। इट मीनस कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 8 and 9 वी फाइंड दैट एनर्जी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी किनेटिक एनर्जी बिफोर कलिजन। इसका मतलब दिस टोटल किनेटिक एनर्जी बिफोर कलिजन दैट इज कन्वर्टेड इनटू मास दैट इज वाई मास ऑफ द बॉडी increases. So this is all about increase in mass during inelastic collision.